Third question, exercise 10.1. Find the distance between point P x1 y1 and Q x2 y2. थर्ड क्वेश्चन है, एक पॉइंट P है x1 y1 गिवन है और एक पॉइंट Q है जो x2 y2 गिवन है. ठीक है. We need to find out the distance between P and Q when PQ is parallel to y-axis. Second case, PQ is parallel to x-axis. First case, PQ is parallel to y-axis. अब बेटा एक बात ध्यान दीजिएगा, मैं डायग्राम ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको. अगर आपका कोई आपकी लाइन y-axis के पैरेलल है, दिस इज y-axis, और आपकी लाइन अगर कोई y-axis के पैरेलल है तो एक बात याद रखिएगा, थ्रू आउट द लाइन आपका जो x कोऑर्डिनेट है it will remain same. Throughout the line your x coordinate will remain same. So we'll say that here x coordinate, या इसको एब्सिसा बोल सकते हैं, x coordinate और एब्सिसा will remain same, will remain same. और बेटा अगर ये सेम होएगा तो it implies we can say that x1 is equals to x2 होएगा अगर कोई लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होगी. तो therefore distance PQ, डिस्टेंस फार्मूला बेटा लगाते हैं, that is x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 होल स्क्वायर. अब क्योंकि x1 और x2 आपस में इक्वल है, so therefore x1 minus x2 should be equals to 0. It implies distance PQ is equals to अंडर रूट ऑफ y2 minus y1 का होल स्क्वायर. होल स्क्वायर और अंडर रूट का साइन रिमूव हो जाएगा. It implies distance PQ will be equals to y2 minus y1. प्लस माइनस का साइन मैं इसलिए नहीं लगाऊंगा क्योंकि डिस्टेंस फाइंड आउट करना है एंड डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव. अब इसी तरह से अगर सेकंड केस कंसीडर करें, सेकंड केस में कहा है PQ is parallel to x एक्सिस. अब अगर PQ पैरेलल टू x एक्सिस है, यहाँ पे देखिए एक स्ट्रेट लाइन में PQ ड्रॉ कर लेता हूँ, दिस इज PQ. यहाँ पे जो जितने भी पॉइंट हैं उन सब में ऑर्डिनेट यानी कि y की वैल्यू सेम रहेगी. यहाँ लिखेंगे PQ पैरेलल टू x एक्सिस, इट इंप्लाइज ऑर्डिनेट will remain same. Ordinate will remain same. It implies y1 is equals to y2. It implies y2 minus y1 is equals to 0. And in this case, what will be the value of PQ? PQ distance is equals to under root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी. So we can say that distance PQ will be equals to under root of x2 minus x1 whole square, or we can say that the distance will be x2 minus x1. And again positive sign consider करना है because distance can never be negative. मेरा given है point P और B. Coordinates of point P and B. Coordinates of P के कोऑर्डिनेट है 0, -4, B के कोऑर्डिनेट है 8, 0. Let capital A is midpoint. Capital A is midpoint of PB. और अगर PB का midpoint capital A है तो हम लोगों ने 10th क्लास में midpoint फॉर्मूला किया है x1 plus x2 divided by 2, y1 plus y2 divided by 2. It implies coordinates of A. कोऑर्डिनेट्स ऑफ कैपिटल ए क्या हो जाएंगे, x1 plus x2 divided by 2, y1 plus y2 divided by 2. So capital A के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 4, -2. Now we need to find out the slope of the line OA. Now slope of line OA. Line OA where O is the origin. स्लोप ऑफ लाइन का फार्मूला बेटा m is equals to y2 minus y1 over x2 minus x1. जनरली जो दूसरे नंबर पे कोऑर्डिनेट हम लोग या दूसरे नंबर पे वर्टेक्स लिखते हैं उसके कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 कंसीडर कर लेते हैं. अब यहाँ देखिए O के कोऑर्डिनेट है 0 0, A के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 4, -2. तो A के कोऑर्डिनेट्स को y2 x2 y2 कंसीडर कर लेते हैं और O के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1.
So it will become minus 2 minus 0 over 4 minus 0. Our answer will come out to be minus 1 by 2. Therefore, slope of the line OA, yeah, slope of the line which passes through origin and through the midpoint of given points is minus 1 by 2. Okay. Sixth, without using Pythagoras theorem. अब 6th क्वेश्चन है, 3 कोऑर्डिनेट्स हम लोगों को गिवन है and we need to prove that these coordinates are the coordinates of vertices of right angled triangle. Let us consider question number 6. Coordinate A जो है that is 4,4, coordinate B is 3,5 and coordinate C is -1, -1. ऐसे करते हैं, जब 3 कोऑर्डिनेट बनते हैं तो हमारे पास 3 साइड्स बनेगी AB, BC और AC. So सबसे पहले slope of AB that will be y2 minus y1 over x2 minus x1. इसको x2 y2 मान लेते हैं, इसको x1 y1 मान लेते हैं. देखिएगा बता दी 5 minus 5 divided by 3 minus 4. आंसर 0 आ गया. AB की स्लोप 0. 4,4 है. ओके करेक्ट कर लेते हैं बेटा. 4,4 तो ये बेटा आ जाएगा 5 minus 4 that is -1. क्या कीजिए 5 minus 4 1 हो जाएगा, 3 minus 4 -1. अब इसके बाद स्लोप ऑफ BC की स्लोप लेनी है. फिर से फॉर्मूला y2 minus y1 over x2 minus x1, बट दिस टाइम इसको x2 y2 और इसको x1 y1 कंसीडर करना है. ये हो जाएगा -1 -5 डिवाइडेड बाय -1 -3 -6 upon -4. ये हो जाएगा 3/2. इसके बाद स्लोप ऑफ AC that is y2 minus y1 over x2 minus x1. AC की स्लोप है तो इसको x2 y2 और इसको x1 y1 मानते हैं. बेटा देखिएगा -1 -4 over -1 -4. ये आ जाएगा -5 over -5 कैंसिल आउट होके आंसर आ गया 1. अब बेटा ध्यान दीजिए, अगर मैं इस स्लोप और इस स्लोप को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर -1 बनता है. नाउ सी here slope of AB multiply by slope of AC is equals to -1 multiplied by 1, that is -1. Hence AB perpendicular to AC. और अगर AB AC के परपेंडिकुलर हो गया तो it implies triangle ABC is a right angled triangle. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो ट्रायंगल ABC है वो राइट एंगल ट्रायंगल है. और ये हम लोगों ने विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम प्रूव कर दिया. ओके ऊपर वाला. नाउ सी हियर, यहाँ पे इस सिचुएशन में ये AB स्ट्रेट लाइन है, मुझे AB स्ट्रेट लाइन की स्लोप फाइंड आउट करनी है. लेकिन इस क्वेश्चन में ये कहा गया कि AB मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस. ये वाला पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस है, इसका मतलब ये एंगल 30 डिग्री होएगा. स्लोप के लिए मुझे एंगल चाहिए पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ. मींस टू से आई वांट टू फाइंड आउट दिस एंगल. लेट अस कंसीडर इसको P लिख लेते हैं. दिस इज O एंड दिस इज Q. चेक कीजिए, अगर ये एंगल 30 डिग्री का होता तो ये एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. और उसके हिसाब से फिर ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा. तो स्लोप क्या हो जाएगी फिर आपके पास, tan 60 डिग्री. लिखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. बेटा थोड़ा सा करेक्शन कीजिए, अभी यहाँ पे ये डायग्राम नहीं है, डायग्राम इसकी दूसरे तरीके से बनेगी. मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो डायरेक्शन इसकी बेटा दूसरी साइड जाएगी. See here, this will be the direction and this will be angle 30 degree. This is y axis and this is x axis. Again we need to find out slope of line AB. अब करते हैं. Now this angle is 30 degree क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, y एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो एंगल जो है y एक्सिस से स्टार्ट होएगा. करेक्शन कर लीजिए इसको.
यहाँ पे let us consider POQ. Given that from figure we find that angle OPQ is equals to 30 degree vertically opposite angle. ये डायरेक्टली मैंने ये एंगल 30 डिग्री लिख दिया है. OPQ is equals to 30 degree. It implies angle OQP is equals to 60 degree by ASP. ASP means होता कि angle sum property. क्योंकि ये 30 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 60 डिग्री. और अगर 60 डिग्री है तो it implies थीटा. यहाँ पे देखिए थीटा. It implies exterior angle PQO is equals to 120 degree. Exterior angle PQO का exterior angle ये वाला 120 डिग्री हो जाएगा by linear pair. That is theta is equals to 120 degree. It implies slope M is equals to tangent 120 degree. और बेटा इसको हम लोग लिख सकते हैं M is equals to tangent 180 minus 60 degree, or we can say that M is equals to minus tangent 60 degree. Minus tangent 60 degree because 120 degree second quadrant में चला जाएगा और second quadrant में tan negative होता है. So its answer will be equals to minus under root 3. Okay. Now question number 8. Here we are given a point x comma minus 1 a coordinate and b coordinate is 2 comma 1 and c coordinate is 4 comma 5. Given that these 3 points are collinear. यहाँ देखिए let us suppose मैं एक छोटी सी डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ. This is point A, this is point B, this is point C. इसके कोऑर्डिनेट है x, -1, b के कोऑर्डिनेट्स है 2, 1, c के कोऑर्डिनेट है 4, 5. Because these 3 points are collinear, because A, B, C are collinear, it implies slope of AB should be equals to slope of BC. मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था बेटा, दो स्लोप इक्वल होती हैं तो लाइंस पैरेलल होती हैं, लेकिन अगर दोनों लाइनों के बीच में एक भी पॉइंट कॉमन आ गया तो इसका मतलब लाइन कोलिनियर है, एक्सटेंशन है, एक ही लाइन को बढ़ाया जा रहा है. अब यहाँ पे देखिए बी पॉइंट कॉमन है तो इसका मतलब ए बी और बी सी लाइंस सेम होंगी. और वैसे भी हमको ये कोलिनियर गिवन है, सो विल कंसीडर हियर एज स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बी सी. फॉर्मूला लगाइए, y2 minus y1 over x2 minus x1. It implies 1 plus 1 over 2 minus x will be equals to 5 minus 1 over 4 minus 2. So 2 over 2 minus x is equals to 4 over 2. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया गया 2 और ये इधर वाले के साथ कट जाएगा. 1 over 2 minus x is equals to 1. It implies x minus 2 minus x is equals to 1. और अगर 2 minus x is equals to 1 आ गया तो बेटा x is equals to 3 आ जाता है हमारे पास. तो x की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी. बेटा मेक करेक्शन, यहाँ पे 2 minus x is equals to 1 यानी कि x की वैल्यू 1 आनी है. ठीक है. नाउ 9th क्वेश्चन कंसीडर कीजिए. यहाँ पे given that without using distance formula show that the 4 points are vertices of a parallelogram. मैं डायग्राम रफ डायग्राम एक ड्रॉ कर लेता हूँ. वैसे ही पैरेललोग्राम की डायग्राम कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन हम लोगों ने प्रूव करना है. लेट अस कंसीडर दिस इज पॉइंट A -2, -1, B पॉइंट 4, 0, C पॉइंट 3, 3 एंड D पॉइंट -3, 2. अब बेटा हमको ये कहा गया है कि विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला प्रूव दैट दिस इज अ पैरेललोग्राम. अब अगर हम लोग बात करें पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या होती है, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल. हम लोगों को कहा है कि डिस्टेंस फार्मूला नहीं यूज करना है, मींस टू से वी आर नॉट सपोज्ड टू फाइंड आउट डिस्टेंस. तो अगर डिस्टेंस नहीं प्रूव करना है तो हम लोग क्या करें, ये लाइन को इसके पैरेलल प्रूव कर दें, AB को CD के, सिमिलरली AD को
BC के पैरेलल प्रूव कर देते हैं। सो इट विल बिकम अ पैरेललोग्राम। ठीक है, देखिए 9th क्वेश्चन, स्लोप ऑफ AB। देखिए बेटा AB की स्लोप क्या हो जाएगी, 0 + 1 ओवर 4 + 2 दैट इज 1/6। उसके बाद स्लोप ऑफ CD जो ऊपर वाली लाइन है, 3 - 2 ओवर 3 + 3 1/6। चेक कीजिए M1 और M2 इक्वल आ गया है, बिकॉज M1 = M2, it implies AB is parallel to CD। और अगर AB CD के पैरेलल आ गई है, सिमिलरली अब दूसरी साइड यहां देखिए स्लोप ऑफ AD और स्लोप ऑफ BC निकालिए, इसको सॉल्व कीजिए। नाउ स्लोप ऑफ AD is equals to स्लोप ऑफ AD। अब यहां पे चेक कर लेते हैं, AD की स्लोप आ जाएगी 2 + 1 ओवर -3 + 2, यानी कि ये आ जाएगी -3, एंड स्लोप ऑफ BC 3 - 0 ओवर 3 - 4, और ये भी हमारे पास -3 आ गई। और यहाँ पे भी देखिए बेटा M1 और M2 आपस में इक्वल आ गई हैं। Here also M1 is equals to M2, it implies AD is parallel to BC, that is both pairs of opposite sides are parallel, hence ABCD is a parallelogram, hence ABCD is a parallelogram। तो इसका मतलब ABCD हमारे पास क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। और ये विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला हम लोगों ने प्रूव कर लिया है। ये बहुत सारे तरीके से पैरेललोग्राम प्रूव किया जा सकता है। अच्छा, मैं एक मान लीजिए क्वेश्चन कहता हूं, विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला एंड विदाउट यूजिंग स्लोप कंसेप्ट, प्रूव दैट दीज आर द वर्सेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। अब डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, इंटरसेक्ट अलग चीज है, बाइसेक्ट अलग चीज है। बाइसेक्ट मतलब क्या है, आपने AC का मिड पॉइंट निकालना है, BD का मिड पॉइंट निकालना है, सेम आना चाहिए, और अगर ये सेम आ गया तो इट मींस इट इज अ पैरेललोग्राम। 2-3 तरीके से प्रूव किया जा सकता है, अंडरस्टैंड? ठीक है जी, चलिए अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एंगल बिटवीन द x एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 3, -1 एंड 4, -2। चलिए बेटा ये कल ही करेंगे, टाइम ओवर होने वाला है।